Namaste, Vidya Khusraho. I am Arjuvano, Assistant Professor in Education and Methodology. Today I will discuss with you Unix. First of all, we define what is Unix. Unix is an operating system which is provide multitasking, multi-user time sharing operating system. Unix has been ported to more machine family than the other operating system. So Unix is an operating system which support multitasking and multi-user functionality. Okay. And Unix uh, is widely used in all form of computing systems such as desktop, laptop, server. So Unix is provided as a graphical user interface similar to a window that support easy navigation and support environment. Okay, Unix is a free and open source software because can be used personally and commercially. So many flavors of Unix which are made with the source code of Unix and may have property license. तो यूनिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो अबंटू है जिसका फ्रेंडली यूज कर सकते हो। वो जो होता है वो हमें फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। इसमें आप उसके सोर्स कोड जो होते हैं फ्रीली प्रोवाइड होते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। Brief history of Unix. The Unix developed was started in 1969 at Bell Laboratory in New Jersey. Bell Laboratories was 1964-1968 involved on the development of a multi-user time-sharing operating system, which is called Multics. Multics means multiple multiplex information and computing system, which is failure after some years, in early 1969, Bell Labs withdraw from the Multics project. 1969 में यूनिक्स की जो बेल लैबोरेटरीज में जो है वो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था, जिसका वर्क जो होता है इन्वॉल्व था उसके अंदर मल्टी यूजर्स एंड टाइम शेयरिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था। उसमें कुछ ड्रॉबैक आए, उसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहते थे फंक्शनलिटी। तो Bell Lab researcher who had worked on multiple information and computing system still wanted to develop an operating system for their own and Bell Labs programming. And Bell Labs programming job control and resources uses need. तो जो मल्टिक्स है, मल्टिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर वो अपना खुद का मतलब प्रोग्रामिंग बिलिप्स प्रोग्रामिंग जॉब कंट्रोल एंड रिसोर्सेज जो है नीड्स जो है उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उनको भी ऐड करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, when Multics was withdrawn, Ken Thomas and Dennis Ritchie needed to rewrite an operating system in order to play scale space travel on another similar machines. PD7 is programmed data processor for K memory for user program। ओके, तो उन्होंने उसमें कुछ मतलब उसके अंदर कुछ ऐड किए फीचर्स। तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग ऐड किया, प्रोग्राम भी ऐड किया उसके अंदर। तो उन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट हुआ, पी डी पी 7 इज प्रोग्राम डेटा प्रोसेस 7। तो रिजल्ट जो उसका सिस्टम का रिजल्टेंट सिस्टम जो था, द रिजल्ट वाज सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। यूनिक्स मीन्स यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विस विच वाज एन emasculated multics. Then, first version of Unix was written in the low-level PDP-7 assembler language. सबसे पहले जो Unix का फर्स्ट वर्जन जो है वो लिखा गया था, रिटर्न था वो PDP-7 असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल के PDP-7 असेंबली लैंग्वेज में। कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला फर्स्ट वर्जन में। फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, उस लैंग्वेज को मॉडिफाइड किया। तो उसको बाद में उसने कन्वर्ट किया था बी लैंग्वेज में। ठीक है, बी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर ऐड किया। तो लेटर लैंग्वेज का TMG was developed for a PDP-7 by RMMC Color using TMG to develop a Fortran compiler। मतलब असेंबली लो लेवल लैंग्वेज में इसको डेवलप किया उसमें Fortran compiler। Ken Thomas instead ended up developing a compiler for a new high level language he called B language, which is based on the earlier BCPA language developed by Martin Richard. When PDP-11 computer arrived at Bell Labs, Danny Ritchie built on B language to create a new language called C। जब पीडी बेल लेबोरेटरीज में जब एक नया लैंग्वेज क्रिएट हुआ था बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डैनी रिसीस ने उस बेल लेबोरेटरीज में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को से क्रिएट किया, एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर ऐड किया जो था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So Unix component can be were later written in C and finally with the kernel recipe in 1973। तो
Unix version 6 system released in 1975, which is become very popular because it was give free and open source distributed with its source code. And in 1983, AT&T released Unix system 5th, which was a commercial version. So the University of California at Berkeley standard the development of its own version of Unix. Berkeley also involved in the inclusion of transmission control protocol TCP/IP networking protocol. उन्होंने क्या क्या जैसे जैसे वर्जन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगी V6 आया V6 को उन्होंने कुछ और ऐड किया उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया TCP/IP नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कर दिया बेल लेबोरेटरीज के अंदर तो फिर एक नया वर्जन आया ठीक है द फॉलोइंग वर द मेजर माइलस्टोन इन यूनिक्स हिस्ट्री अर्ली 1980s. So ATT were developing its system fifth Unix version fifth system. Berkeley took initiative on its own Unix Berkeley software distribution Unix. Then Sun Microsoft developed its own BCD. BCD मतलब Berkeley Software Development Based Unix called Sun Operating System जिसको बाद में उसको रिटर्न किया गया Sun Solaris ने उन्होंने क्या किया जैसे सबसे पहले उन्होंने 1969 में उन्होंने क्या बनाया 1969 में उन्होंने एक मल्टी का टास्किंग और मल्टी यूजर्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था जिसका नाम दिया गया मल्टिक्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम उसके बाद इसमें उन्होंने ऐड किया वो चाहते थे कि इसमें यूजर के रिसोर्सेज जो हो वो रीड हो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग ऐड करना चाहते थे वो उसके अंदर तो उन्होंने जो फिर नया वर्जन जो है वो PDP-7 यानी PDP-7 नया वर्जन आया तो PDP-7 में उन्होंने क्या किया प्रोग्रामिंग ऐड किया जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऐड किया उसके बाद उन्होंने इस असेंबली लो लेवल लैंग्वेज जो PDP-7 क्रिएट हुआ था उसमें उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज यानी बी लैंग्वेज क्रिएट किया ऑपरेटिंग सिस्टम में बेल लेबोरेटरीज में तो उस बी लैंग्वेज को क्रिएट करके रिटर्न बी लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्रामिंग वो PDP-11 आया फिर PDP-11 में उन्होंने क्या किया कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटर्न थी बी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया सी लैंग्वेज में तो हमारा जो यूनिक्स की कंपोनेंट है उसको रिटर्न मतलब लिखा सी लैंग्वेज प्रोग्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा ठीक है फिर ये जो लिखने के बाद जो हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था यूनिक्स यूनिक्स मतलब यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम उसके बाद जो डेवलपर थे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि इसके अंदर कुछ और TCP/IP प्रोटोकॉल हम इन्वॉल्व करना चाहते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए फिर एक नया वर्जन क्रिएट हुआ तो ये जो क्रिएट हुआ था ये उन्होंने इसके अंदर ऐड किया ऐड करने के बाद उनका नया वर्जन आया यूनिक्स वर्जन 6 रिलीज किया था 1975 में ये वर्जन जो था ये वर्जन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड करता था फ्री सोर्स कोड फॉर ऑल यूजर्स फिर 1983 में जो नया वर्जन सिस्टम आया था फिफ्थ आया था वो जो कमर्शियल वर्जन था ठीक है इसके बाद उन्होंने क्या किया लास्ट जो होता है उन्होंने खुद का यूनिक्स भी बैकरेली ने क्या किया जो बैकरेली साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया BSD यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रिएट किया जिसमें बैकरेली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स को उन्होंने खुद क्रिएट किया उसका जाके बाद में जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम ने जो है इस BSD बेस्ड यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हुआ था ये डेवलप किया था उसका नाम जो है सन ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया तो बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको सन ऑपरेटिंग सिस्टम नाम को चेंज करके सन सोलरिस रीनेम किया गया दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2.0 थैंक यू